So today will be a bit of a hands-on session based on what we worked on, what I presented a little bit briefly yesterday, showing how you can use it in your own citizen science projects. तो हम क्यों पहले से ही ये कहना चाहता था कि हमने क्यों तारामंडल क्यों बना लिया तारामंडल तो हम पहले से ही ग्वाटेमाला नाम के देश में काम कर रहे थे आपको पता है ग्वाटेमाला के बारे में You know where Guatemala is? Guatemala. जी नज़दीक नज़दीक कोई और केंद्र अमेरिका सेंट्रल अमेरिका इन नॉर्थ अमेरिका तो वहाँ तो हमने पानी की नियंत्रण के बारे में एक कार्यक्रम पर शुरू कर दिया और वहाँ हमने देखे कि अंकड़े है पानी के बारे में पर एक जगह में नहीं है थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा यहाँ so the data there we're working on a water management project and what we found very quickly was that the data was really spread out one institution has data on water or rainfall in one village another one has data on rainfall in another village another institution has data lake pollution in 3 different points and it becomes very very difficult to manage this data तो हमने सोचा कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं हमारे समूह अनुसंधान समूह के अंदर भी यही मुसीबत आ रही थी कि मेरे पास एक संस्करण है अंकड़ों की मेरे सहकर्मी के पास दूसरी संस्करण है और फिर वहाँ बदलाव आएगी यहाँ बदलाव आएगी कौन सी नवीनतर है कोई भी नवीनतर नहीं है थोड़ा नवीन थोड़ा पुराना है कैसे एक साथ काम कर सकते हैं and we also had the same project within our own research team we started off with the same data then it was a pretty big file because we had it was for hydrological modeling so we had soil data topographical data water meteorological data and fairly soon one of us took their copy and updated data for one part. Somebody else took their own copy, added data for another part. And pretty soon, nobody was up to date and everybody was out of date at the same time. So we wanted to create a project where we could share this data automatically without ending up with all these different concurrent versions. At the same time, servers are really expensive. तो सर्वर जो है तो उसके लिए बहुत खर्चा हो जाते हैं छोटी कार्यक्रम है तो ठीक है बड़ी बन जाती है लंबी समय पर करनी है तो कौन पैसे देगा उसके लिए So also, the problem with the server is this is a 5-year project, but the idea is that it could be useful for a longer term. So we could have paid for one with the funding, but then what would happen afterwards? There's a few projects, citizen science projects across the world that are lucky enough to be popular enough to get pretty much whatever funding they like for the foreseeable future, but we weren't in that case. So we started thinking of how we could create a system that would share this data. और फिर हमने सोचा क्यों सहकर्मी से सहकर्मी? So why the peer-to-peer approach? One of them is to get rid of the server. Actually, the main one is that. A second one also is resilience. अगर एक केंद्रीकृत प्रणाली है तो फिर सब सर्वर की द्वारा से हो जाती है ना. The server is the central part that's necessary for all data exchange with all users. And if something happens to the server, then of course the communication can't happen anymore. तो कल की बात से एक छोटी प्रश्न विकेंद्रीकृत और विस्तृत प्रणालियों में से क्या फर्क है? So what's the difference, a little review from yesterday, between a distributed and a decentralized system? The centralized one, that's like pretty much the entire internet. How would you describe the main difference between decentralized and distributed? I'll give you a little hit there. So that's the difference between centralized and decentralized or distributed. Right. And what's the difference between distributed and decentralized? कोई भी नहीं. जब तक नहीं बोलते तब तक आगे नहीं जाऊंगा. I'll give you a hint. Distributed system is, for example, would be Constellation. Decentralized would be more like Bitcoin or blockchain or cryptocurrencies. Any other ideas? What's the main difference in the topology between this here and this here? What do you see as a difference? कैसे अलग है? ये वाला विकेंद्रीकृत और वितरित. उनकी संरचना देखें तो कैसे अलग है? 9:30 बजे हो गया. जग जाइएगा. अभी आने वालों के लिए ये प्रश्न पूछ रहा था कि विकेंद्रीकृत और विस्तृत प्रणाली से क्या फर्क होता है? What would be the difference? What's the main difference between these two systems? As a hint, look, you can look at the architecture. Now, we said the difference between centralized... Yes? बोलिए. अच्छा. बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. तो, உங்களுக்கு हिंदी தெரியல இல்லையா? தெரியும். अच्छा. कोई है जिसको हिंदी नहीं आती? Anybody who doesn't speak Hindi? I should have asked this in English, not in Hindi. अच्छा, ठीक है. कुछ समझ नहीं आ जाए तो हाथ उठाइए और मैं दोबारा बोलूँगा, अनुवाद करूँगा. तो आपकी बात बहुत सही है. विकेंद्रीकृत प्रणाली में नोड्स फिर होते हैं तो सारी क्रिप्टोकरेंसी जो है जैसे कि बिटकॉइन सब ये तो बहुत बड़े डेटाबेस रखे हैं बहुत बड़े सॉफ्टवेयर भी रखे हैं और वो आपके कंप्यूटर आपकी दूरभाष में नहीं रह सकते हैं तो उसीलिए क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े कंपनी आते हैं बिटकॉइन की बड़े बड़े कंपनियां भी हैं जो अपने सर्वर रखते हैं और उसे सेवा देते हैं हमें
तो उसका मतलब है कि आखिर में केंद्रीकृत प्रणाली की जैसे ही है, पर काफ़ी अप्रभावी प्रणाली बन जाती है, यानी काफ़ी इनएफिशिएंट सिस्टम हो जाती है, क्योंकि यहाँ 3 केंद्र हैं और इनके बीच में हमेशा संपर्क होने रहता है और उस पूरी प्रणाली की एक समय पर एक ही स्थिति हो सकता है। उदाहरण देता हूँ, एक सर्वर पर एक समय पर एक ही स्थिति। उसका क्या मतलब है कि अगर आपकी ईमेल देख रहे हैं तो एक समय पर वही ही ईमेल होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि अगर इस कंप्यूटर से देखें तो आपको वही ईमेल मिलेगा, दूसरे कंप्यूटर से तो दूसरी ईमेल मिलेगी ना। एक समय एक स्थिति। और बिटकॉइन और सब इन क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समय में एक स्थिति ही होने पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 स्थिति हो तो वही पैसा 2 बार आप खर्च कर सके ना। तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर उसकी खर्च करता हूँ तो उससे पहले कि मैं दूसरी खर्च कर सकूँ तो उसको जांच करनी है कि मैंने उसको पहले से ही खर्च किया या नहीं। नहीं तो मैं 100 रुपये 2-3 बार खर्च करके फिर 300 रुपये की खर्च करूँगा। तो उसके लिए इस प्रणालियों में एक समय में एक स्थिति, तो इस नोड को जानना है कि क्या इस नोड में खर्च हुई है या नहीं हुई, और इसको जानना है कि इसमें हुई या नहीं हुई। उसके लिए बहुत आहिस्ता है। अगर देखते हैं इन प्रणालियों तो एथेरियम, उसके बारे में सुन लिए होंगे आप या नहीं? जी? डॉज? हाँ, 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 हाँ। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनमें काफ़ी आहिस्ता प्रणाली है और अगर कोई भी उस पर एक ऐप बनाते हैं, कई साल पहले किसी ने याद नहीं है, मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया, पर किसी ने बिल्ली की ऐप बनाया। अच्छा, कोई वर्चुअल बिल्ली की ऐप बनाया एथेरियम के ऊपर और बहुत फेमस बन गया, बहुत लोग उसके इस्तेमाल करने लगे और फिर भी पूरी एथेरियम रुक गई है क्योंकि उन्हें लोग उस पर बिल्ली बेचा रहे थे। तो अगर हम असली ऐप बना रहे हैं जिसका असली प्रयोग हो और पहली बेवकूफ़ जो आता है और बिल्ली बेचने लगता है, वर्चुअल बिल्ली बेचने लगता है, तो उसकी वजह से हमारी ऐप बंद हो जाएगी, तो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक जगह है। तो इसीलिए हमने बहुत जल्दी निश्चय कर लिया कि हम वेब केंद्रित प्रणाली के प्रयोग नहीं कर लेंगे। और कोई बात नहीं है, क्योंकि हम उससे तारामंडल से कोई पैसा नहीं बनाने वाले हैं। उसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वैज्ञानिक आंकड़ों साझा कर रहे हैं, जानकारियाँ साझा कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि एक समय में एक स्थिति होने पड़ता है ना। अगर मेरे पास कोई आंकड़े हैं और आपके पास कोई जानकारियाँ हैं और उसके पास कई जानकारियाँ हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि सब ये जानकारियाँ एक ही जगह में, एक स्थिति में, एक समय में रहे ना। अलग-अलग हो सकता है और जब आप अपनी ज़रूरियाँ के अनुसार जानकारियाँ ढूँढ रहे हैं, तो आपको जो ज़रूरी है तो वो आपके कंप्यूटर तक पहुँचेगा। तो इसलिए हम विकेंद्रित प्रणाली पूरी तरह से छोड़ दिया। जब हम कहते हैं कि हम वितरित प्रणालियों पर काम कर रहे हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम इथेरियम, दाज, ये है उसका क्या नाम है, हम इथेरियम पर एक भाषा है जिसमें लिखते हैं सॉलिडिटी, हाँ, उसके बारे में बोलते हैं। हमें उससे कोई संबंध नहीं है। और फिर तो हमारे प्रणाली में अगर सर्वर हटा देते हैं तो फिर सीधे हमारे बीच में ऐसे संपर्क बना लेते हैं। तो अब ही हम यात्रा पर चले जाएंगे। कोई लोग बाकी लोग सुबह तो हिमालय चले गए हैं, हम तो नेपाल चला जाएंगे और भी दूर जाएंगे। तो उसके लिए अपनी संगणक को खोल दीजिएगा। संगणक न हो तो फिर अपनी दूरभाष में भी कर सकते हैं ये। तो पहले से ही यहाँ पर आना, ये आपकी बोर्डिंग पास है काठमांडू तक। तो स्कैन करके या फिर सीधे अपनी संगणक पर ऐसा लिख सकते हैं। संगणक पर करें तो थोड़ा शायद थोड़ा बड़ा स्क्रीन पर बेहतर होगा, पर फ़ोन पर भी काम करने चाहिए। आपको 2 मिनट दे दूंगा उसको लिखने के लिए। सही तरह से आ रही है क्या? आ गया, अच्छा। कोई है जिसको नहीं आया? हाथ उठाइए अगर हो गया, अगर नहीं हो गया तो हाथ उठाइए। क्या हो रहा है या कोई मुश्किल आ गई? अच्छा, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देने चाहिए। अगर आप इसको तमिल में करना चाहते हैं या कोई और भाषा में, तो आप भाषा चुनने पर दबा के फिर भाषा बदल सकते हैं। तो पहले से ही हम तो एक उदाहरण देता हूँ तारामंडल की। तो अगर यहाँ पहुँचती हैं तो आप देख सकेंगे ऐसा एक नक्शा आएगा, सबको आ गया। और अगर एक चित्र खींचते हैं तो फिर ऐसा पानी यानी बारिश की जांच की एक चित्र आ जाएगी। तो ये क्या है, एक कार्यक्रम है जिसका नाम है पानी के लिए दूरभाष, और ये नेपाल में और अन्य देशों में काम करते हैं। और उन्होंने हमारे साथ अपने चित्र और सारे आंकड़े साझा कर दिए। तो हमने सोचा कि ऐसा एक उदाहरण दें। अगर असली ज़िंदगी में ऐसा आप बना लें तो फिर चित्र खुद नहीं आएंगे, आपके उपयोगकर्ता हैं खुद जाके फिर अपने चित्र खींच के फिर लिख लेंगे। पर आज तो हाँ, हमें तो काफ़ी बहुत चित्र चाहिए, तो हमने उसी चित्र उसमें रख लिए। तो आप
उसी जो कैमरा की आइकन है उस पर क्लिक क्लिक करके फिर चित्र देके फिर उसमें लिखिए कि कितनी बारिश हो रही है और अपने आप ये तो उस ग्राफ पर पहुंच आने चाहिए। हो रहा है, एक बार गोल गोल आके फिर आ जाऊंगा। तो फिर अगला कदम पर चलें। तो यहाँ तो अभी हम देख रहे हैं कि अपने अंतरिक्ष तारामंडल में कैसे जोड़ सकते हैं। और ख्याल रखिए ये तो तारामंडल की ऐप नहीं है ना, हमने जो कल देखे थे तो वो ये कोई और ऐप, ये तो इस कक्षा के लिए बनी हुई एक ऐप। फिर भी वो तारामंडल के साथ काम करता है क्योंकि तारामंडल को दो हिस्से हैं, एक है GUI यानी उसकी इंटरफेस है चेहरा, और एक है API। तो उसमें वही तारामंडल के API डाल के फिर हमने दूसरी इंटरफेस बना लिया आज की कक्षा के लिए। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि फिर सारे अंकड़े एक जगह में ही नहीं है ना, किसी के पास कई अंकड़े हैं, किसी और के पास कई अंकड़े हैं, और जब उनमें से संबंध हो जाती है तो जब कनेक्ट हो जाती है तो फिर दूसरों के अंकड़े आपके कंप्यूटर पर ही सीधे पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही काम करेगा इस प्रणाली। और फिर तो सर्वर क्यों रखते हैं? अगर सर्वर उतना महंगा है तो फिर उसका प्रयोग क्यों करते हैं हम? क्या हमें कौन सी सेवा देते हैं? एक है तो स्टोरेज, सारे डेटा सर्वर में रखते हैं। सब जो आ गए जो पहुंच गए तो हिंदी आती है ना? Everybody still speaks Hindi? No? Yeah, who? How far along have you gotten in the tutorial? Okay. Okay. Acha. You can still follow the tutorial if you like. So what does a server give to us if it's so expensive? What's the advantage of a server? Why do we bother with a server at all? क्यों नहीं करोड़ रुपये खर्च करते हैं सर्वर पर? एक है स्टोरेज, और क्या? तो फिर उसकी उपलब्धता, जब तक सर्वर हो तब तक उपलब्धता है, अगर हैक हो जाता है तो फिर उपलब्धता नहीं मिलेगी। So the advantage of availability is, or server for availability, is that in a peer-to-peer system, if somebody goes offline and their data has not been shared yet with anybody else, then you lose the availability of that data. A server is usually well protected with backups, and so it guarantees availability of data. Of course, if it gets hacked or if something happens, then everybody loses availability and connectivity at the same time. तो और फिर एक और बात है, एक और सेवा है, तो उपलब्धता है, स्टोरेज है, फिर तीसरी बात सेवा है जो सर्वर देते हैं हमें, हाँ कनेक्टिविटी। तो चौथी बात है, चौथी बात क्या होगी? What would the fourth service be? We have storage, availability, connectivity, so basically finding other peers. And connectivity is actually quite a field of active research. It's actually very, very difficult to connect browsers together directly. अगर आप अभी देखे हैं तो हम जो अभी जो उदाहरण किए, तो फिर आपके अंकड़े अब तक यहाँ मेरे पास नहीं पहुँचे जब तक मैं देखता हूँ, तो पहुँचने चाहिए था। इसके कारण ये है कि ब्राउज़र से ब्राउज़र सीधे बात करने बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्राउज़र के लिए बनी हुई नहीं, ब्राउज़र तो फिर सर्वर से बात करने के लिए बनी हुई है। तो अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, सर्वर से बात नहीं करोगे, दूसरे ब्राउज़र से सीधे बात करोगे, और उन्हें पसंद नहीं है, ऐसे इसके लिए इस काम के लिए नहीं बनी हुई है। तो ऐसा करने के लिए बहुत अलग अलग नई नई प्रौद्योगिकियाँ बना रहे हैं, फिर भी अब तक तो पूरी 100% नहीं है। तो आने वाले वर्षों में थोड़ा बेहतर हो जाएगा हमारे ख्याल में, पर अब तक हमेशा कनेक्टिविटी सीधे नहीं मिलती। पर चौथी सेवा है, चौथी सेवा, what would the fourth one be? The fourth advantage of a server? अरे पढ़ो यार। हाँ जी, सुरक्षा या फिर प्रमाणीकरण। तो सॉरी, ऑथेंटिकेशन। अगर हम एक सर्वर में से बात कर रहे हैं तो फिर हम एक व्यक्ति कहते हैं कि ये मैं हूँ और ये है मेरी पासवर्ड है, और उसके बाद सर्वर कहेगा ठीक है ये तो तुम ही हो, तो फिर जो डेटा जो आंकड़े रखने हैं तो भेज दो, और फिर सर्वर दूसरों को उस व्यक्ति के आंकड़े भेज देते हैं। तो जब अगर आप मेरी तरफ से एक ईमेल देखते हैं तो आपको कैसा पता है कि मैंने वही ईमेल लिखा, कोई और नहीं? कैसा पता है? ईमेल आईडी फिर भी वो दिखाई देता है ना, कैसे पता है कि सच है या झूठ? कैसे विश्वास करते हैं कि मैं किसी और की आईडी लेके फिर आपको नहीं भेज दिया? When somebody sends an email, how do you know that that email was really sent by the sender, by the email address that's written there? हाँ, अगर सामने वाला भेजा तो पता है, पर अगर तो क्या पासवर्ड, और कौन पासवर्ड की जांच करती है? अच्छा, तो आखिर में आप सर्वर पर विश्वास कर रही हैं कि सर्वर जांच सही तरह से किया, सारे विश्वास सर्वर पर ही रखते हैं।
अगर कोई और आता है और कहता है कि मैं तो वही इंसान हूँ और पासवर्ड गलत है, तो फिर सभी कहेंगे कि तुम वही नहीं हो, तो तुम्हारे आंकड़े दूसरों को नहीं भेज दूंगा। फिर क्या होता है, अगर हम वितरित प्रणाली में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं? When I receive, say for example, your data here on this app, how can I verify that this data really came from you? And if I want to block or accept specific people, how can I do that? There's no server to verify passwords. And password would be completely useless because you would have to send me your password for me to verify that it's you, and then I could use your password to impersonate you. अच्छा, पर पासवर्ड की जांच जैसे फाइल्स होते हैं और फाइल्स को डायरेक्टली एक पासवर्ड होता है कि उन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए जैसे पासवर्ड अच्छा, हाँ हम ही ने डाला है और हम ही हाँ पासवर्ड भूल गए तो हाँ ये सच है। जब तक आप साझा करना नहीं चाहती, अगर आप साझा करने चाहती है, ये चाहती है कि सब देख लें, पर नहीं चाहती है कि किसी और आपके नाम में कोई डेटा साझा कर लें। ये कैसे काम करता है नीचे? उसी लिए ही काम करते हैं, ये तो एक्सेल जैसे कर रही है ना, उसी लिए ही काम करता है क्योंकि एक्सेल जांच करता है। अगर आप अपनी नकली एक्सेल बना लें तो फिर उसको एडिट सब कर सकेंगे। यानी एक्सेल तो सारे आंकड़े, सारी फाइल आपके पास है ना, अगर आप मुझे भेज देते हैं तो शायद मैं एडिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पासवर्ड नहीं है। पर क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि एक्सेल पासवर्ड पूछ लेगा मुझसे। अगर किसी और प्रोग्राम में पाइथन में खोल लेता हूँ तो फिर एडिट कर सकूंगा, पासवर्ड नहीं पूछेगा। ये तो सिर्फ इंटरफेस में सुरक्षा, नीचे सुरक्षा नहीं है। और अगर मैं उसको एडिट करके फिर दूसरों को भेज देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये तो उसकी डेटा है ना, और वो नहीं जान सकेगा कि क्या आपसे आई या क्या मुझसे आई। अच्छा, ये अच्छी बात है ये। और ये तो आने वाला है 2-3 स्लाइड में। तो ये एक बात है। फिर भी झूठ बोलने से हमें नहीं रोक सकता है ना। मैं तो सारे इतिहास बदलते फिर कह सकते हो। हाँ 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 हाँ। आपके नाम याद करवाइए, माफ करो, आपकी नाम याद करवाइए। हाँ जी, श्रद्धा। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि श्रद्धा ने कहा कि कल रुड़की में -20 डिग्री था, और सबको भेज सकता हूँ। और हर समझेगा कि श्रद्धा अच्छी डेटा नहीं नहीं लिखती है, और फिर भी मैंने किया होगा, किसी को पता नहीं हो सकता है कि मैंने की बोला और श्रद्धा ने नहीं। क्रिप्टोग्राफी की तरह से कुछ कर सकते हैं क्या? पब्लिक की इंक्रिप्शन है तो दो बार है। क्रिप्टोग्राफी दो चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, एक है इंक्रिप्शन और एक है तो वेरिफिकेशन यानी हस्ताक्षर के लिए। So we can use cryptography in this case to protect the data, and there's really two types of keys that we can use. One is to encrypt to protect read access, and one is signatures to protect the write access. So in this case, we'll be using signatures to protect write access because Constellation is an open system, so we're not restricting read access at all. तो उसमें कैसे होता है कि हम जब भी कोई आंकड़ा लिखते हैं तो उसके साथ हमारे हस्ताक्षर रखते हैं। उसके लिए दो चाबी हैं, एक हमारी निजी चाबी जो किसी को भी नहीं भेजना, अपने संगणक पर अपने दूरभाष में ही रहेगा और उसे बाहर नहीं आनी चाहिए। और दूसरी है जो सबको देते हैं चाबी, और उस चाबी से हम तो जांच कर सकते हैं कि इस हस्ताक्षर सच्ची में वही किया या नहीं किया। तो ऐसे करें कि उदाहरण, जब आप अभी तो आंकड़े लिखे तारामंडल में, हमारे अनुप्रयोग में, उदाहरण अनुप्रयोग में, जब आपने लिखा कि उस दिन तो 10 मिलीमीटर बारिश हुई, तो 10 मिलीमीटर ही नहीं लिखा, उसके पीछे क्या हुआ कि उसके साथ आपकी हस्ताक्षर आई जिसमें लिखा है कि मैं श्रद्धा हूँ और मैंने ही इस आंकड़ा लिख लिया। और फिर उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हर किसी को दूसरों के आंकड़ों को साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपके आंकड़े आपकी हस्ताक्षर के साथ आगे भेज सकता हूँ। हाँ बोलिए, क्यों नहीं? तो दो तरह की जांच है ना, एक जांच है कि आंकड़े सही हैं या नहीं, एक जांच है कि क्या वही व्यक्ति आंकड़ों को प्रस्तुत किया जो कह रहे हैं ना। तो हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं अभी, और ये करने बहुत आसान है, एक छोटी ऑपरेशन है बस। हस्ताक्षर की जांच ही है और ये अपने आप की जाती है। तो जब तारामंडल में आप आंकड़े पहुंच सकते हैं तो फिर तारामंडल आपके लिए अपने आप फिर जांच करेगा, और अगर जांच सही है, हस्ताक्षर सही है, तो फिर आपको दिखाई देगा, अगर सही नहीं है तो उसको फेंक देगा बस। तो ये काफ़ी आसान है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या लोग झूठ आंकड़े लिख रहे हैं या सही आंकड़े लिख रहे हैं या नहीं, तो फिर आपके अनुप्रयोग में खुद जांच करने पड़ेगा। ये तो वितरित प्रणाली की बात ही नहीं है, केंद्रित प्रणाली में भी ऐसा होते हैं ना। जब तक नागरिक विज्ञान करते हैं तो फिर वही समस्या आ सकती है।
So there's really two types of checks to do. One is for against basically one is a cybersecurity check. Basically, are people sharing the data that has been fraudulently modified on the network or not? And then the second is, are your users actually inputting good data or not? So the first one is checked automatically with the cryptography. The second one can't be checked with cryptography. That's really at an application level, but that's a question that our citizen science has to deal with, right? Whether you're using a server or using a constellation, you have to have some level, some way of working with your users and of verifying the quality of data. There's quite a few papers on that. Overall, it seems to be feasible. It seems to be, there are some mistakes, but if you have a good user base, then it seems to be the case that you can get fairly good data from citizen science projects. तो इसमें अगर मैं किसी और की अंकड़े अगर मैं अंकित की अंकड़े लेके फिर उसको बदल के आगे भेज देता हूँ तो सबको समझ आ जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्यों क्योंकि अगर मैं अपने हस्ताक्षर देता हूँ तो सब लिखेंगे कि ये अंकित की हस्ताक्षर नहीं है मेरी हस्ताक्षर है और अगर अंकित की हस्ताक्षर वैसे ही उसका नकल करके रखता हूँ तो फिर वही हस्ताक्षर नए वाले अंकरों के लिए सही नहीं होगा ना एक हस्ताक्षर एक ही अंकर के लिए ही चलता है तो लोगों को भी पता हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मुझे निकलाएंगे प्रणाली से तो इस तरह से हमें थोड़ा सुरक्षित मिल जाती है हाँ तो फिर ये तो आखिरी बात पर पहुंच रहे हैं जो आपने कही कि हम तो अंकरों की संरक्षण नहीं करते हैं अंकरों पर संचालन पर किए गए संचालन को ही साझा करते हैं That means we don't store the data itself, we store operations on the data. ये क्यों होता है अगर यहाँ हमारे पास अंक हैं और फिर सत्या की प्रतिलिपि में ऐसा लिखा है कि 4 मिलीमीटर वर्ष हुई नहीं 5 हुई और रवि कहता है कि 3 हुई तो कौन सोच बोल रहा है कौन बोल रहा है यानी कौन सी सही है when we have a conflict between two users like that somebody says it's 3 somebody says it's 4 how can we reconcile the two कौन कहते हैं कि सच्चा सही कह रहे हैं कौन कहते हैं रवि सही कह रहा है जी हाँ दोनों ही सही दोनों ही गलत हमें पता नहीं है क्योंकि हमने तो अंकरों को ही साझा किए ये तो एक्सेल में है तो ऐसा होगा ना किसको उतनी लंबी वाला नाम का एक्सेल मिल गया जैसे कि अंकर नए वाला तीसरी विस्तरण रवि की टिप्पणियाँ और उसके बाद दूसरे के नाम ऐसा बड़े लंबे नाम हो जाते हैं ना हमारे डेटा में तो और फिर जब अलग है तो फिर हमें पता नहीं है कि कौन से सबसे नया है हो सकता है कि दोनों ही नए हैं अलग अलग जगहों में फिर नहीं जान सकते पर अगर संचालन के इतिहास देख सकते हैं तो फिर ऐसा ही लिखा होगा कि पहले पंक्ति 1 पर रवि ने 3 वर्षा लिखा और पंक्ति 1 में सच्चा ने वर्ष 3 को रद्द करके फिर 4 लिख लिया तो ही 3 होने चाहिए या 4 नहीं 4 लिखा है माफ किया 5 होने चाहिए 4 नहीं तो फिर अभी 5 है या 3 साफ है कि 5 होने चाहिए क्योंकि अभी ये तो 5 3 के बाद आ गया तो उसका मतलब ये है कि ऐसे वितरित प्रणालियों में हम अलग अलग जगह पर काम करके अपने आप काम करके फिर दोबारा जब अंतर्जाल मिल जाती है तो अपने आप सबसे नवीनतरीन संस्करण सब किसी को मिल जाएगी अगर आपने तो फिर शायद गूगल डॉक्स के प्रयोग किए होंगे ना या गूगल शीट जब अंतर्जाल नहीं है तो क्या होता है गूगल शीट पर क्या होता है अगर अंतर्जाल नहीं है अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर बंद हो जाता है ना कुछ भी नहीं लिख सकते हैं क्यों क्योंकि सच में वितरित नहीं है अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो सीधे गूगल की सर्वर जाके फिर सीधे सारे दूसरे उपयोगकर्ताओं को पहुंचती है और उनके बदलाव सीधे सर्वर जाके फिर वापस आप तक पहुंचते हैं सर्वर नहीं है तो उसको पता नहीं है कि दूसरों क्या लिख रहे हैं और पता ना हो कि दूसरों क्या लिख रहे हैं तो ऐसा कोई स्थिति आ जाए तो फिर बाद में पता नहीं होगा कि क्या 5 लिख रहे हैं या 3 लिख रहे हैं तो उसके लिए सब बंद कर देता है जब आपके पास अंतर्जाल नहीं है वितरित प्रणाली में ऐसे नहीं होता है क्योंकि हमेशा संचालन के इतिहास पर लिखते रहेंगे और आखिर में जब दोबारा इस अंतर्जाल मिल जाती है तो फिर सीधे एक से दूसरे तक संचालन के इतिहास पूरी हो जाएगी फिर सब किसी को एक ही नवीनतरीन संस्करण मिल जाएगी So if you've seen in Google Docs, you can't, as soon as the internet connectivity goes out, it freezes, right? It won't let you write. And that's because it's not really a distributed or a real-time app. If you're writing and somebody else is collaborating, it's not real-time in the sense that the data goes from your edits, leave your computer, go to the server
updates one final copy and sends that copy back out to everybody. And if you have no internet connectivity, then the server can't provide that service. And if the data diverges, we'll end up with a situation like this, and Google won't know which of the two to keep. So to prevent that from happening, as soon as the connectivity is lost, it freezes the page and you can't edit anymore, even if it's your own data. With a distributed system where we have an operation history, then you don't have that problem anymore. Everybody can keep on adding and modifying their version, and as soon as they get connectivity with each other again, then the software will automatically resolve the conflicts to create a final a shared version. So it's called eventual consistency. We're not guaranteed to have consistent versions, but we are guaranteed that if we're connected to each other long enough, we will eventually end up in a consistent state, which is why we call it eventual consistency. और फिर एक बात है कि हर किसी को खुद की अंकड़े होते हैं. अगर केंद्र प्रणाली हो तो फिर हर किसी को अपने अंकड़े एक संचिका को भेजते हैं, और हर ये तो एक उपयोगकर्ता का है, ये तो रेखा एक दूसरे उपयोगकर्ता का है, पर फिर भी सारे एक ही संचालित पर रहते हैं. अगर वितरण प्रणाली है तो हर किसी को अपनी अंकड़े हैं खुद अपने पास है, और फिर देखने के समय सब जोड़ के दिखाई देते हैं एक साथ एक बड़ी बड़ी टेबल में, तालिका में. पर फिर भी सच में हर उपयोगकर्ता के अपने डेटाबेस छोटी छोटी डेटाबेस रखते हैं. So basically the main difference is that when you're building these apps, in a centralized app, you would have logic where every user sends data to a centralized database that checks authentication, as we mentioned, and then adds it to the database. In the case of a distributed app, you could have one database that has all the data from everybody, but it's not a good idea because any user could then just add an unlimited number of data to the app, add gigabytes of data, and crash everybody else. So in that case, it's better to have everybody have their own small database. Of course, when you view it, तो तब जब उसको देखते हैं तो बेहतर होगा कि एक ही तालिका में पहुंच जाए ना. तो UI में ऐसे कर सकते हैं कि सारे डेटाबेस एक साथ जम के दिखाई देते हैं, पर उसके नीचे जो है तो वो अलग अलग छोटे छोटे डेटाबेस. अगर कोई हंसने के लिए 100 गीगाबाइट जोड़ने चाहते हैं तो फिर अपने संगणक को ही क्रैश कर देंगे, किसी और की संगणक को क्रैश नहीं करेगा. फिर ऐसा कोई कार्यक्रम है पहले से ही जो जिसमें अंकरों साझा करने के लिए रिपोजिटरीज बनाए हैं ना. आप शायद सुने होंगे Zenodo. कोई नहीं सुना है Zenodo के बारे में? अच्छा, तो Zenodo आपको GitHub के बारे में पता है? अच्छा, तो GitHub संकेत के लिए है जो Zenodo अंकर के लिए है. तो अगर आप तो एक वैज्ञानिक लेख लिखते हैं तो उसका एक DOI मिलती है ना. पर फिर भी अगर आपकी आर्टिकल की में अपने अंकरों की प्रयोग किए तो अंकरों कहाँ रख लेना. पहले से ही तो नहीं रखते हैं, फिर अपने दफ्तर में ही रखते थे, और किसी को देखना है तो हमसे पूछना पड़ता था. अभी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होने चाहिए, हर किसी को अंकरों तक पहुंच मिलनी चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने Zenodo बना लिया है जिसमें आप अपने डेटा अपने कोड भी रख सकते हैं और उसका एक DOI मिलती है. तो अपने अनुसंधान की रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए भी अच्छी बात है. फिर भी वहाँ जो रखते हैं हम, वो तो मैं उसको कहते हैं जीवाश्म अंकर. जीवाश्म यानी फॉसिलाइज्ड डेटा. ये आर्टिकल जैसे है ना, आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसको एक DOI मिलती है और फिर वही रखते हैं. दूसरे अनुसंधान करते हैं, दूसरी लेख लिखना है तो दूसरी लिखे फिर दोबारा एक आर्टिकल निकला सकते हैं. पर जब आर्टिकल बाहर आ गया तो दोबारा उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं ना. कभी कभी अगर बहुत बड़ी गलती ढूंढ लेते हैं तो फिर भी बदलाव कर देंगे, पर आमतौर पर नहीं होने चाहिए. ऐसे है Zenodo. ऐसे इस तरह की रिपोजिटरी जीवाश्म अंकरों को कहता हूँ क्योंकि एक बार उसकी एक ही संरक्षण रख के फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकती. पर अगर हम नागरिक विज्ञान पर काम कर रहे हैं तो रोज नए नए अंकड़े आते रहेंगे. तो ये तो जीवित अंकड़ों के लिए एक कोई रिपोजिटरी होने चाहिए. उसी लिए ही हमने तारामंडल बनाया है ताकि उसमें हमेशा नए नए अंकड़े आ सकते हैं. अभी जब आप उदाहरण पर काम किए तो उसमें देखे होंगे ना, जब ही नए नए अंकड़े लिखते हैं तभी पहुंचते हैं, तभी ग्राफ में आते हैं ना. तो ये तो जीवित अंकड़े कहते हैं उसको. एक है क्वेरी जो वितरण प्रणाली है. ये तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 2016 में बनाए हैं. आपको पता है, आपको याद है 2016 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देश में क्या हुआ? राजनीतिक संबंध में एक चुनाव हुई थी और चुनाव में एक राष्ट्रपति जीत लिया, एक प्रधानमंत्री जीत लिया. याद आ गया ना.
तो तब जो लोग जो विज्ञान में काम कर रहे थे, जो सरकार के वैज्ञानिक सबसे डर गए ना, क्योंकि उन्होंने देखे कि सारे आंकड़े तो अब की हटा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के आंकड़े हटाने वाले हैं, और ये लोग समझ आ गए कि हम सरकार पर निर्भर नहीं कर सकते हैं कि हमारे आंकड़े हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि शायद हम एक वितरित प्रणाली बना सकते हैं जिसमें वैज्ञानिक आंकड़ों साझा करेंगे। तो तब क्वेरी नाम की कंपनी की शुरुआत हुई, पर वो तो फिर जीवित आंकड़ों के लिए नहीं है, जीवाश्म आंकड़े के लिए है। जैसे कि आप आंकड़े बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, जोड़ा लेते हैं, फिर उस पर पब्लिश कर देते हैं और बस वही ही रहता है। दूसरे संस्करण करने हैं तो फिर दोबारा पब्लिश करने पड़ते हैं। तो सच में ये और जेनोडो एक जैसी ही है। तारामंडल थोड़ा अलग है क्योंकि जब ही बदलाव आती है तब ही तारामंडल में दिखाई देती है। नागरिक विज्ञान के लिए अच्छी है। अगर आप तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी देख रहे हैं तो शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर कल जो एनालिसिस किया, विश्लेषण जिसने किया कल, तो फिर आज हम शायद नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो फिर अलग होगा ना, अगर नई आंकड़ों आ गए हैं उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है, पर फिर अलग अलग है और अलग अलग काम के लिए प्रयोग करने चाहिए। तो फिर अभी तो तारामंडल का प्रयोग करेंगे। तो दोबारा हमारा वेबसाइट पर जाइए, नीचे वाला होगा तारामंडल पाना, आप देखे होंगे। तो फिर यहाँ 4 चुनौती हैं। अगर आप संकेत पढ़ने चाहिए, सब टाइपस्क्रिप्ट में है। आपको जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट आती है? किसी को आता है टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट? नहीं, ठीक है। फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो उसकी संकेत देख सकते हैं, सब मुफ्त है। फिर यहाँ प्रलेखन पढ़ना अगर तारामंडल के बारे में और सीखना चाहते हैं। और फिर उसका प्रयोग करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप तो अभ्यारण कर सकते हैं, यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं अपने संगणक पर और वहाँ से सीधे काम कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी ये है कि उसको विचारक में प्रयोग कर सकते हैं, विचारक यानी ब्राउज़र में। तो दोनों ऐप है। ब्राउज़र में थोड़ा आसान है जल्दी प्रयोग करने के लिए, फिर भी उसकी मेमोरी सब ये तो थोड़ा कम है क्योंकि आपकी ब्राउज़र के अंदर ही रहते हैं ना। तो आपकी मर्ज़ी है जो भी चाहिए। अब के लिए तो शायद अगर ब्राउज़र में करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पर उसको अभ्यारण भी कर सकते हैं। कौन ब्राउज़र पर कर रहे हैं सिर्फ जानने के लिए, विचारक पर, और कौन अभ्यारण किया? अच्छा, ठीक है। और तो ऐसा एक चेहरा आनी चाहिए। तो ऊपर जाके यहाँ तो एक छोटी कैसे कहते हैं, विश्व है, वहाँ क्लिक करके फिर अपनी भाषा चुन सकती हैं। तो फ्रांसीसी है, तमिल है, हिंदी माफ़ कीजिएगा थोड़ा कम है, आज तक अनुवाद करने का उतनी समय नहीं मिली, पर फिर हम तो दिखाई देंगे कि कहाँ पर क्लिक करना, और बहुत आइकन्स भी रखे हैं उसमें। तो फिर उस पर तो नया खाता, नूवो कंट पर क्लिक करना। सब ठीक है? किसी के पास संदेह है? हाँ, तो तारामंडल में अपने अंकरों जोड़ने वाले हैं। उसके लिए फिर उसकी संरचना थोड़ा समझना है। तो तारामंडल में तालिका है और फिर डेटाबेस है। ये तो थोड़ा एक्सेल शीट जैसे है, जिसमें एक एक्सेल शीट, एक डेटाबेस है, और उसके अंदर हर टैब तो एक तालिका है। तो अगर आप उसको एक्सेल में लिख सकते हैं तो तारामंडल में भी लिख सकते हैं। तो अब ही उदाहरण अंकरों का अभ्यारण करना है। तो दोबारा हमारा कक्षा की अंतर्जाल पन्ने तक जाइएगा और वहाँ तो अंकरों ले लीजिएगा अगर अब तक नहीं लिए हैं। CSV फाइल लेना। ये तो हमारे ये तो ट्यूटोरियल की वेबसाइट है। हाँ, CSV वाला लेना, या आपकी मर्जी, सच में आपकी मर्जी। नहीं, CSV एक्सेल ODS है, जो भी है जी। हाँ, जो भी है सब एक ही है और ऐसे दिखाई देने चाहिए ये। तो ये सिर्फ मौसम की आंकड़े हैं मेरी शहर की, मोntréal, हमारे विमान संस्थान की है। और वहाँ तो क्या है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड यानी कहाँ, जगह, हर एक जगह ही है, समय, तापमान और बारिश, प्लुई यानी बारिश, टेम्परेचर तापमान, और हाँ, और तिथि भी है, डेट। तो अभी उसको तारामंडल में लिख लेंगे। तो पहले से ही आप तो वहाँ जो छोटी डेटाबेस है ना यहाँ, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। तो जब ये कर रहे हैं तो आखिर में कोई शब्द कहने चाहता था क्योंकि 4 मिनट में है। तो फिर अपने कार्यक्रम में तारामंडल प्रयोग करने के 2 तरीके हैं और 2 तरीके हमने आज देखे। पहले से
अंकरों को ढूंढने उसको जोड़ने के लिए तारामंडल की प्रयोग कर सकते हैं। तो हर किसी को अपने चित्र से अंकरों लिख लिए और सब अंकड़े जोड़ा के फिर एक डेटाबेस बना सकते हैं। दूसरी तरीका है कि हमारे पास जो अंकड़े हैं तो उन्हें साझा करने के लिए तारामंडल की प्रयोग कर सकते हैं। और ये है जो भी कर रहे हैं, अपने डेटाबेस बना के फिर अपने CSV से वहां डेटा रख रहे हैं। तो दो तरीके हैं और दो रास्ते से भी तारामंडल की प्रयोग की जा सकती है। तो फिर आखिर में तारामंडल की एक आखिरी अच्छी बात है, ये है कि अगर हम ये तो आमतौर पर वेब की संरचना है जिसमें अभी तो एक क्लाइंट होगा आपका वेब ऐप, उसके नीचे है आपका सर्वर और सर्वर के नीचे आपकी डेटाबेस है। डेटाबेस SQL में होगा, सर्वर C# या पाइथन में होगा, क्लाइंट तो जावास्क्रिप्ट में होगा ना। तो आपकी काम 3 बार लिखना है। आपकी डेटा, आपकी अंकड़ों की संरचना 3 बार लिखने पड़ता है 3 अलग अलग भाषाओं में। तो फिर अगर यहाँ कोई बदलाव करते हैं आप तो फिर C# में भी और SQL में भी बदलाव करने पड़ेगा। तो बहुत कम हो जाती है, बहुत खर्चे भी हो जाते हैं इसके लिए। उसके अलावा जब हम तो सर्वर हटा देते हैं तो फिर भी ऐसे ही पूरी एक ही भाषा में की जा सकती है। तो अभी जो देख रहे हैं तारामंडल पर पूरी जावास्क्रिप्ट, पूरी टाइपस्क्रिप्ट में है, रिएक्ट नहीं है, व्यू ऐप पर वैसे ही है। और फिर एक कोड ही है और सीधे अपने आप जादू से अंकरों साझा की जाते हैं। तो जो डेवलपर के लिए है तो उनके लिए बहुत आसान है। और ऐसा तारामंडल के साथ आप बनाने तो कम डेवलपर की ज़रूरत होती है क्योंकि पूरी एक ही भाषा में कर सकते हैं, एक ही कोड के साथ कर सकते हैं। और फिर आखिरी बात यह है, आखिरी पन्ने पर हमारी ट्यूटोरियल की साइट पर अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो फिर पहले जिस डेटाबेस बनाए हैं जब हम तो नेपाल के अंकरों लिख रहे थे तो सीधे तारामंडल की ऐप में देख सकते हैं। तो उससे ये देखते हैं, हम यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं और ऐसे देख सकते हैं कि ये अलग अलग वेबसाइट है ना, अलग अलग URL, अलग अलग डोमेन, फिर भी सारे तारामंडल से जुड़े होने की वजह से बिना कोई सर्वर अंकरों जो एक ऐप पर जोड़ देते हैं तो फिर दूसरे ऐप पर भी दिखाई देंगे। आखिर में अगर आप अपनी डेटाबेस की पन्ने तक जाते हैं, यहाँ एक छोटी आइकन है जो कोड की आइकन दिखाई देता है XML जैसे। तो अब जाइएगा जहाँ आप अपनी डेटाबेस बनाए थे ना, उस पेज को वापस जाके फिर छोटी कोड की आइकन पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, जूलिया और R में इन डेटा पर पहुँचने के लिए कोड आपके लिए यहाँ लिखी हुई है। तो अगर आप पाइथन का प्रयोग करते हैं तो इसी कोड का नकल लेके फिर पाइथन में आपकी तारामंडल के अंकरों का प्रयोग कर सकते हैं। और जब ही तारामंडल में कोई बदलाव होगी तो सीधे आपकी पाइथन कोड में पहुंच जाएंगे ये बदलाव। तो उसका पैकेज है कॉन्स्टलेशन पाई, एक और है जूलिया और R के लिए भी। उसके बारे में कोई खास प्रश्न है? हाँ जी। क्योंकि आपकी डेटा को एक आईडी है और वो आईडी के बदलाव नहीं हो सकती है। यहाँ आपकी डेटाबेस की आईडी यहाँ आपके लिए लिख चुकी है और उसी पते पर पाइथन जाके आपके अंकरों ले जाएगा तारामंडल की जाल से। तो हम जानते हैं कि ये काफी नई कार्यक्रम है, अब तक पूरी अनिवार्य नहीं हुई। कोई लोग हैं जो हमारे मदद कर रहेंगे तो बहुत धन्यवाद इसके लिए। उसके ऊपर हम समझ रहे हैं कि इंटरफेस कैसे होने चाहिए, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। 4 महीने पहले हम वही ट्यूटोरियल दिए थे और तब तो और भी मुश्किल था, अब थोड़ा आसान हुआ। फिर आज देख रहे हैं कि कोई मुश्किल है तो इससे हम भी सीख रहे हैं। अगर आपको हमारी टिप्पणियां हैं तो जरूर बता देना और अगला साल की ट्यूटोरियल थोड़ा बेहतर भी हो जाएगा तो जरूर बता देना इंटरफेस पे क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करता, क्या आसान है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या बिल्कुल खराब है, सब बता दीजिएगा और उसके वजह से उसकी प्रगति करते रहेंगे। तो उसके साथ अगर आप में से कोई लोग हैं जो कोड लिखने से पसंद करते हैं तो GitHub पर हमारे सारे कोड हैं, पाइथन वाला, जूलिया, R वाला, तारामंडल इंटरफेस सब है वहाँ, तो उसको देख सकते हैं भी। पूरी मुफ्त है। उसके साथ आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ।